Trinamool has challenged you on that basis that 4th May on the date of result you बैठ जाओ ये अभिषेक जी की भाषा है। मैं ना इसका जवाब दे सकता हूं ना रिस्पॉन्ड कर सकता हूं। मैं इस तरह की ओछी बातों का जवाब नहीं देता भैया। वो बोलते रहते, समाज में कई प्रकार के लोग होते। নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন পারফেক্ট পলিটিক্স, সাদা বাংলায় রাজনীতির কথা। বন্ধুরা, প্রথম দফার রেকর্ড ভোটের পরেই বিজেপির দুই প্রধান নেতা নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ দুজনকেই কলকাতায় ফুরফুরে মেজাজে দেখা গেল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গঙ্গাবক্ষে নৌকায় গিয়ে বেশ ফুরফুরে মেজাজে ঘুরে বেড়ালেন, ছবি তুললেন। আর অন্যদিকে অমিত শাহ সকাল সকাল সাংবাদিক বৈঠক করে বেশ উৎফুল্ল মেজাজে সাংবাদিকদের নানান প্রশ্নের উত্তর দিলেন। এবং বিজেপির এই দুই কেন্দ্রীয় শীর্ষ নেতা দুজনেরই যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখা গেল, তাতে এতটুকুও চিন্তার কোনো কপালে ভাঁজ দুই নেতার দেখা গেল না। উল্টে অমিত শাহ এদিন আগ বাড়িয়ে বেশি করে সাংবাদিকদের কাছ থেকে প্রশ্ন শুনলেন এবং সেই সব প্রশ্নের উত্তর তিনি এমনভাবে দিলেন যে সেই উত্তর শুনে সাংবাদিকরাও বিস্মিত হয়ে গেলেন। আর এদিন সেই সব প্রশ্নের মধ্যে এমন প্রশ্নও ছিল যা অমিত শাহকেও অস্বস্তিতে ফেলতে পারত। কেননা প্রথম দফার ভোটের পরেই অমিত শাহ এদিন তার টার্গেটে যেটা বলেছেন যে 152টি আসনের মধ্যে কম পক্ষে 110টি আসন তো বিজেপি পাবে। কিন্তু উল্টো দিকে আবার তৃণমূলের দাবি যে তারাই নাকি 125 থেকে 130টি আসন পাবে। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে এদিন অমিত শাহকে অভিষেক ব্যানার্জির যে চ্যালেঞ্জ, যে 4 তারিখের বিকেলে কি অমিত শাহ কলকাতায় থাকতে পারবেন, সেই প্রশ্নটাই কিন্তু এদিন তৃণমূল ঘেঁষা বাংলার প্রথম সারির কাগজের সাংবাদিক অমিত শাহকে করেছিলেন। আর তার উত্তরে অমিত শাহ যে কথাটা বললেন তাতে সেই তৃণমূলপন্থী কাগজ আখেরে অভিষেক ব্যানার্জিরই নাক কাটিয়ে ফেললেন। কেননা অভিষেক ব্যানার্জির চ্যালেঞ্জের উত্তর অমিত শাহ তো সরাসরি দিলেনই না, সেই সঙ্গে তিনি অভিষেক ব্যানার্জির এই চ্যালেঞ্জের বিষয়টিকে যেভাবে একটা সংকীর্ণ মানসিকতা, একটা সংকীর্ণ ভাবনা বলে তিনি উড়িয়ে দিলেন, তাতে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ যেটা মনে করছেন যে এই মোদী শাহরা এখনও অভিষেক ব্যানার্জিকে তেমন কোনো নেতা বলে গুরুত্বই দিতে চাইছেন না। অভিষেক ব্যানার্জিকে তারা নেতা বলে ধরছেনই না, বরং তার বদলে অভিষেক ব্যানার্জির পরিচয় এখনও মোদী শাহদের কাছে মমতা ব্যানার্জির ভাইপো বলেই কিন্তু বেশি করে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হচ্ছে। যেমনটা কিনা মায়াবতীর ক্ষেত্রে হয়েছিল। মায়াবতীও স্বপ্ন দেখেছিলেন তার ভাইপোকে তিনি তার রাজনৈতিক রাজপাট দিয়ে যাবেন, বহুজন সমাজবাদী পার্টির রাজত্বটা তিনি ভাইপোকে দিয়ে যাবেন। কিন্তু উত্তরপ্রদেশের 3 বারের মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতীর বহুজন সমাজ পার্টি আজকে কিন্তু ইতিহাস হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে মায়াবতীর ভাইপোও কিন্তু ইতিহাস হয়ে গেছে। তো সেই মায়াবতীর ভাইপোকে মোদী শাহরে যে গুরুত্বটা সেই সময়ে দিয়েছিলেন, ঠিক একই গুরুত্ব এই অভিষেক ব্যানার্জির ক্ষেত্রেও মোদী শাহরা দিচ্ছেন কিংবা দিতে চাইছেন বলে কিন্তু রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করছে। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে যদি সত্যি এবারের ভোটে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গ থেকে তৃণমূলকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি দখল করে ফেলে, তাহলে কিন্তু রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ যেটা বলছেন যে হতে পারে মমতা ব্যানার্জির অবস্থাও অনেকটা সেই মায়াবতীর মতোই হবে। এমনকি তৃণমূলের অবস্থাও সেই মায়াবতীর বহুজন সমাজ পার্টির মতোই কিন্তু হবে এবং মায়াবতীর ভাইপোর যা দশা হয়েছিল সেই একই দশা কিন্তু অভিষেক ব্যানার্জিরও হবে। কেননা এদিন অমিত শাহ কিন্তু কথায় এটাও বলেছেন যে যারা দুর্নীতি করেছে, যাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে, বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরেই কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে নতুন করে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে তদন্ত শুরু করা হবে এবং সেই সমস্ত দুর্নীতি নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হবে। ঠিক একই রণকৌশল, একই ধরনের কাজ কিন্তু উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতীর ক্ষেত্রেও নেওয়া হয়েছিল। ফলে অনেকেই যেটা মনে করছেন যে আসলে মায়াবতীর মতোই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দশা আর মায়াবতীর ভাইপোর মতোই অভিষেক ব্যানার্জির দশা করার জন্য কিন্তু এরই মধ্যে বিজেপির তরফ থেকে নীল নকশা তৈরি করে রাখা হয়েছে। আর সেই নীল নকশাই 4 তারিখের পর বেরিয়ে আসবে যদি বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখল করতে পারে, মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি দখল করতে পারে। আর এই নিয়ে নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অমিত শাহ এদিন ঠিক কি বললেন বন্ধুরা দেখুন। तो सुनामी दिख रही है भाई, और मुझे लगता है कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ सीटें भी बढ़ेगी और सीट जीतने का मार्जिन भी बढ़ेगा। कल मैं मध्यम ग्राम में गया था, रात को जो नजारा दिखा है, मध्यम ग्राम में मैं 4थी बार प्रचार करने के लिए गया।
पहली बार नहीं गया हूं। मध्यम ग्राम में रोड शो बहुत मतलब मेरी कल्पना से बहुत बड़ा था। नहीं देखिए, पहले कलकत्ता सिटी कांग्रेस के लिए वोट करता था, एक बार परिवर्तन हुआ और कम्युनिस्ट आए, फिर कम्युनिस्टों के लिए करता था, एक बार परिवर्तन हुआ, दीदी आई, अब दीदी के लिए करता है, इस बार परिवर्तन होगा, भाजपा आएगी और हर बार की तरह 30 साल तक भाजपा के साथ रहेगी। আমি যার নাম ডাকছি এবং তার তিনি হাত তুলবেন, মনোজ্ঞা লোহিওয়াল দিদি, এনডিটিভি। মনোজ্ঞা লোহিওয়াল দিদি, এনডিটিভির। अमित जी, मेरा सवाल ये है कि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाई है, नाव में आज सैर की है और उसके बाद गंगा नदी और बाकी सबकी बातें हुई हैं। जो भी होता है उसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं या तो पब्लिसिटी स्टंट है या फिर बंगाल में एक जगह बनाने की ममता जी कोशिश का है। मानसिकता ऐसा है, मोदी जी बोलेंगे नहीं कभी, मगर गलती से बोल जाए टीएमसी को वोट दो तो कहे नो 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 नहीं देना है, मोदी कहता है टीएमसी को वोट मत देना। अब ममता जी को कौन समझ सकता है? भला कोई गंगा में नाव से सैर करे और अपने आप को गंगा किनारे रहने के वाले लोगों के साथ जोड़कर गंगा के शुद्धिकरण का वादा याद कराए, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? और झालमुड़ी खाने में क्या आपत्ति? ममता दीदी भी मैंने सुना है खाती है, अब मोदी जी खा रहे हैं तो विरोध कर रही है। বিপ্রশ্রী, আনন্দবাজার পত্রিকা। भाई ये आगे से हाथ खड़े करते हैं, उनको बुलाओ यार, तुम कमाल आदमी हो। Good morning, sir. You were in the state for last couple of days before the election. On that basis, अरे यार कपल ऑफ डेज नहीं, 14वां दिन है आज। 14th day. भयानक तरीके से रिड्यूस करते हो यार। Trinamool has challenged you on that basis that 4th May on the date of result, you. बैठ जाओ। ये अभिषेक जी की भाषा है, मैं ना इसका जवाब दे सकता हूं ना रिस्पॉन्ड कर सकता हूं। मैं इस तरह की ओछी बातों का जवाब नहीं देता भैया, वो बोलते रहते हैं, समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं। अंजना ओम काश्यप, आज तक। गृह मंत्री जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि हाल में कई राज्यों में हमने देखा कि एक प्रो इनकम्बेंसी रही अब हाई वोटर टर्नआउट में। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर पश्चिम बंगाल में इस वोटर टर्नआउट को देख रहे हैं जो कि अब तक का सबसे प्रचंड है, तो क्या आधार है कि आप इसको बीजेपी के पक्ष पर मान रहे हैं? जो आपको फीडबैक मिला हो, अगर वो थोड़ा विस्तृत करके आप बता सकें। देखिए, यहां एंटी इनकम्बेंसी चरम पर है, गत चुनाव में भी चरम पर थी, मगर गत चुनाव में वोटिंग जितना भयमुक्त होना चाहिए उतना नहीं हुआ था। ढेर सारे बूथ लूटे गए थे, ढेर सारी जगह पे गांवों से मतदाता को निकलने नहीं दिया गया था। वहां तक कि हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया था कि तृणमूल के झंडे लेकर जुलूस निकाल कर वोट डालने जाए तो शायद देने देंगे, मगर ये भी सफल नहीं हुआ था। इस चुनाव में शुरुआत से मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ है, ढेर सारे फर्जी मतदाता कट गए हैं, ढेर सारे घुसपैठियों के नाम कटे हैं। प्रशासन ने और पुलिस ने और सीएपीएफ ने सुरक्षा का चौक चौबंद व्यवस्था करा है और चुनाव आयोग ने भी अपनी पैनी नजर भयमुक्त वोटिंग के लिए बनाकर रखी है। और इसके कारण मुझे पूरा भरोसा है कि जो रोष है, ये रोष की अभिव्यक्ति मुक्त मन से चुनाव में हुई है, परिणाम हमारे पक्ष में आए। সব্যসাচী, যোগসংখ্য। স্যার,
पहले दफा जो मतदान हुआ है इसमें आप लोग दावा कर रहे हैं कि 110 के ऊपर जाएगा, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का दावा है ये एसआईआर के अगेंस्ट में वोट जा रहा है। इसके विषय में आपको क्या टिप्पणी है? कुछ नहीं कहना है, सबको जो भरोसा है वो बताना चाहिए जनता को। जनता को किस पर भरोसा करना वो जनता तय करे। देवेंद्र परासर, इंडिया टीवी। देवेंद्र परासर, इंडिया टीवी। हाँ, खड़ा करते हैं भैया, गुस्से मत हो यार, क्यों ममता दीदी जैसा करते हो? गृहमंत्री जी, करता हूं मैं। जी आप अलाउ करें तो दो छोटे सवाल हैं मेरे। पहले ही बात तो ये है कि जैसा कि आपने बताया भी कितना वायलेंस होता था यहाँ पे, पिछले लोकसभा में भी हमने देखा कि जम्मू कश्मीर जैसा राज्य जो कि आतंकवाद से ग्रस्त है वहाँ शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हुआ। बंगाल में तब भी वायलेंस हुआ था, इस बार ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है और क्या उल्टा लटका कर सीधा करने वाला फॉर्मूला काम कर रहा है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आमतौर पे बंगाल में बहुत सारे एनालिस्ट एक नैरेटिव चलाते हैं, नॉर्थ बंगाल वर्सेस साउथ बंगाल, पुरुष वोटर बनाम महिला वोटर्स, यूथ बनाम बुजुर्ग। क्या इस बार के चुनाव में आप लोगों का जो फीडबैक है वो काम कर एक रहा है? मुश्त होकर बंगाल के सब आयु वर्ग के, सब जेंडर के और सब हिस्सों से मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। मैं 3 दिनों से प्रेसिडेंसी में घूम रहा हूं, 3 दिनों से। मैं आपको बताता हूं, प्रेसिडेंसी इस बार नॉर्थ बंगाल से आगे रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह जी, निशांत कुमार, ऑर्गेनाइजर इंग्लिश वीकली से। आपने कहा कि इस चुनाव में प्रथम चरण में अभी तक कोई भी हत्या नहीं हुई, जो कि बहुत ही काबिले तारीफ है। लेकिन कुछ जगहों पर जो भाजपा के कैंडिडेट हैं उनके ऊपर आक्रमण हुआ, अटैक हुआ। सेकंड चरण में ऐसा ना हो ताकि जनता जो और भी भरोसे के साथ भाजपा को वोट कर सके, इसको कैसे सुनिश्चित करेंगे? हमारा प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग को मिलने वाला है। दूसरे चरण की व्यवस्था को और चुस्त करने के लिए हम चुनाव आयोग को हमारे सुझाव देने वाले। पीछे दे दो भाई, सेकंड रो में। अमित जी, आपने कहा कि आप 14 दिन से यहाँ पे हैं, शायद और 2-3 दिन यहाँ पे रहेंगे। पहली बार जो बंगाल में आपने इतना दिन बिताया, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 3 ऐसे कुछ अनुभव आपका पास हुआ है जो पॉलिटिकल और अपॉलिटिकल है, जो आप अगले अपने पूरे जीवन तक याद रखेंगे बंगाल के बारे में, पॉलिटिकल और अपॉलिटिकल 3 अनुभव। देखिए, मैं कल का ही एक अनुभव बताता हूं। रोड शो में जबरदस्त भीड़ थी। किसी युवा व्यक्ति के लिए भी रोड शो में वहां खड़ा रहना ये बहुत कठिन था। शायद मैं न्यूट्रल मतदाता होता तो मैं भीड़ देखकर अपने घर चला जाता, वोट भाजपा को देता। इतनी भीड़ थी कल। एक वृद्ध माता जी, मेरा अंदाजे 80 साल की होगी, इतने धक्के खाकर वहां पर खड़ी थी। मैं अपनी धुन में गाड़ी में बैठ गया और उस वक्त मेरी नजर पड़ी कि माता जी कुछ हाथ हिलाकर कह रही है। मैं उतर कर गया। उन्होंने जिस प्रकार से मुझे आशीर्वाद दिया है, ये व्यक्तिगत बात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी को उनका आशीर्वाद है। इतने धक्के खाकर भाजपा के समर्थन में वहां खड़ा रहना ही आशीर्वाद है। मगर फिर भी आगे आकर पुलिस की बैरिकेड को लगभग तोड़कर मिलकर आशीर्वाद दिया है। मैं मानता हूं ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है। मुझे ये एनक है, वो भी एक ऐसी ही माता जी ने भेंट किया हुआ है। और इस प्रकार के आशीर्वाद व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ी ताकत और हौसला देते हैं। फिर ये भाईपो कितनी भी गाली बोले कोई असर नहीं होती है। जब इतनी बूढ़ी माँ आशीर्वाद देती है, कुछ नहीं होता। विकास वादौड़िया, एनडीटीवी। हाथ खड़ा कीजिए। गृहमंत्री जी, मेरा सवाल ये है, आपने कहा कि भाईपो टैक्स यहाँ पर चल रहा है, उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमने पिछले कई चुनावों में देखा, अशोक गहलोत की लाल डायरी का मसला आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। भूपेश बघेल के खिलाफ भी घोटालों की बात हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल तो बरी तक हो गए। तो जो बयानबाजी होती है वो चुनावी जुमला भर रह जाती, बाद में कड़ी कार्रवाई नहीं होती। ऐसा है, आपकी कार्रवाई से आपका रेफरेंस है, कोई कानून को सुने बगैर उठाकर बंद कर। जांच होता है, जांच में सहयोग नहीं करते हैं, देरी होती है। सैन सभी जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है इसमें आएंगे ही आएंगे, आप भरोसा करिए। और जब आता है तब तो आप विंडिक्टिव अप्रोच का प्रेस करते हो, स्टेटमेंट देते हो। कोई विंडिक्टिव अप्रोच नहीं है।
इसकी बकायदा जांच होती है। एजेंसी अपना काम स्वतंत्र रूप से करती हैं और एजेंसियों को कोर्ट में उलझाकर समय भी बहुत जाया किया जाता है, इसलिए देरी हो रही है। मगर सबसे बड़ी बात बंद होना है और बंद होने के बाद आगे न हो इसके लिए एग्जाम्पल सेट करना है। शेष प्रश्न अमित कुमार, टाइम्स नाउ। अमित भाई, अब तो पहला चरण का मतदान हो गया, लेकिन चुनाव के दौरान लगातार ममता ये कह रही थी कि जो अधिकारी बीजेपी के लिए काम कर रहा है, मैं एक एक अधिकारी को पहचान रही हूँ, नजर रखी हूँ, उन पर कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ ये भी कही थी कि चुनाव बंगाल कब्जा करने के बाद दिल्ली कब्जा करेंगे और दिल्ली से भाजपा को भगाएंगे। बहुत अच्छी बात है, चलिए। कोई कुछ नहीं मानता है अमित तेरे अलावे, यहां कुछ नहीं बचा है, दिल्ली कहां आएंगी। अब मैं क्या जवाब दूं, भले आदमी बोलो। चलो, आपने ये कहा है कि पहले चरण में आपके 110 आएंगे, पिछले बार आपके 57 आए थे। तो अमित भाई, इन 5 सालों में क्या बदला है कि डबल नंबर की आप बात कर रहे हैं? ढेर सारा काम हुआ है। पहले तो मैंने जो कहा कि भय मुक्त मतदान हुआ है, जरा भी इंटरप्शन नहीं हुआ है, और दूसरा एंटी इनकम्बेंसी भी चरम पर पहुंची है। और ये 5 साल में विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा पर जो गंभीर सवाल लगे हैं, इसने सारी माताओं बहनों को एक प्रकार से लामबंद कर दिया है और हम भी सीखे हैं काफी कुछ। तो मुझे भरोसा है कि बहुत अच्छा परिणाम आने वाला है। नीरज फ्रॉम जी न्यूज। ईशान दत्त। एक सेकंड। अमित जी, मेरा सवाल ये है कि बंगाल के जनता को आप पहले चरण का जो मतदान हुआ उसके बारे में कोई आश्वासन देना चाहेंगे? क्योंकि कल से सौमित्र खान जी समेत भाजपा के कुछ नेता ऐसा आशंका प्रकट किए हैं कि कुछ ईवीएम बदलने की कोशिश किया गया है। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? हमने वो आशंका को चुनाव आयोग के सामने रखा है। मुझे विश्वास है चुनाव आयोग पूरी जांच पड़ताल करेगी। नीरज जी, जी न्यूज। अमित जी, कोलकाता के आसपास के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत सारे घर खाली मिल रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि वहां पहले बांग्लादेशी रहते थे, अब वो लोग छोड़कर यहां से चले गए हैं। तो ये चुनाव की आहट से पहले ही बहुत सारे घर खाली हैं, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे घर भी हैं जहां लोग कहते हैं कि अभी घुसपैठ है, लोग रह रहे हैं और बड़े ऑर्गेनाइज वे में घर मकान बसाने का काम किया गया था। तो क्या आपको लगता है कि सरकार आने के बाद इनको सबको चिन्हित किया जाएगा और बारी बारी से सब खाली कराया जाएगा? नहीं, निश्चित रूप से हमारी पहले नंबर की प्रायोरिटी है बाढ़ पर सीमा का जो छिद्र है वो भरकर सीमा लगाना, एक एक घुसपैठियों को चिन्हित करना, घुसपैठियों को गलत पहचान पत्र बनाने वाले अफसरों को चिन्हित करना और बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त बनाना, ये हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी है।